हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर एंड आईपीएल रिटेंशंस की बातें शुरू हो चुकी हैं। वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट फ्रैंचाइजेस, एमआई हो, केकेआर हो, आरसीबी हो, चेन्नई सुपर किंग्स, और आज हम बात करेंगे पंजाब किंग्स के बारे में साहिल मल्होत्रा के साथ। साहिल, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पंजाब किंग्स की आज बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक क्लैरिटी मिल गई है उन लोगों को भी कि शिखर धवन अब आईपीएल का पार्ट नहीं है, हंग हिज बूट्स। तो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आ गई है उस फ्रेंचाइज को। सो व्हाट आर योर पिक्स, जिनको उनको रखना चाहिए जिन प्लेयर्स को, या कौन हो सकते हैं वो रिटेंशंस? I think, Soumya, we have very rightly summed it up that retention or revamp. I think they should look to go towards the revamp way, because now with Shikhar Dhawan no longer there, the person who was leading the side, and the results didn't just come their way, but there was some sort of consistency as far as captaincy was concerned. Now that Shikhar is no longer in charge of the side, they have to look for a captain, they have to look for the core squad, and apart from Arshdeep Singh and Kagiso Rabada, I am inclined towards Harshal Patel, but I think apart from both these fast bowlers, I don't really see any probable retentions happening for the Punjab Kings. I think they should be happy with these two retentions. They just can't afford to let go of Arshdeep. Arshdeep must stay. So should Kagiso Rabada. So you have a strong bowling core in place in two fast bowlers, and you can have a couple of handy spinners. Probably get back someone like a Harpreet Brar or a Rahul Chahar, and just let go of Sam Curran. यार मतलब इतना पैसा आपने उसको दिया, and you tried captaincy with him too. Now I don't really know what they'll do with Sam Curran, but clearly he shouldn't be given the captaincy. Look for an Indian captain. Look for someone who understands the local bowlers, local players well, the uncapped Indian players well, because that kind of leads to a successful franchise in future. So to me, Rabada and Arshdeep look to be a no-brainer for now. I think I was tempted towards Harpreet Brar, Harshal Patel, I'll even just I'll Sam just Curran. I'll just mention something here. All due respect to what your opinion is, I have a very interesting photograph from the Twitter handle, X handle of Punjab Kings. एक तरफ वो कह रहे थैंक यू किंग्स, एक तरफ उन्होंने 5 प्लेयर्स का फोटो लगाया है जिसमें हर्षल पटेल हैं, शशांक सिंह है, सैम करन है, कगिसो रबाडा है एंड अर्शदीप सिंह है। तो कहीं ना कहीं शायद कुछ इंडिकेट कर रहा है ये। अगर कुछ इंडिकेट कर रहा है तो हमारा स्टोरी सही इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज आई रोट दैट 5 कुड वेल बी द मैजिकल नंबर व्हेन इट कम्स टू रिटेंशंस, और यहाँ आपको 5 खिलाड़ी दिख रहे हैं. सो मोर देन द प्लेयर्स, आई थिंक द नंबर इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग राइट नाउ. बट इवन इफ यू हैव अ लुक एट इट यार, आई थिंक सैम करन इज देयर बिकॉज कप्तान था. शशांक सिंह एंड आशुतोष वर two most talked about players in the last 12 months for Punjab Kings, primarily because of their comeback from behind act, lower down the order with the bat. And then who else do we see? We someone Rabada, Arshdeep, Harshal, all three of them यार, मतलब फास्ट बॉलिंग के अंदर बहुत दमखम दिखाया. हर्षल का आपको जिप वापस आता हुआ दिखा. He was back amongst the wickets and he bowled at some unforgiving venues also यार. You have to take that into account, but he did get that zip and that dip back. But मुझे नहीं लगता कि ये शशांक सिंह बहुत अच्छा किया है. बट आप रिटेंशन की तरफ अगर उसको देखेंगे, लेट्स वेट फॉर द रूल्स. मे बी एक अनकैप्ड प्लेयर स्पॉट के अंदर आप घुसाना चाहेंगे शशांक सिंह या हरप्रीत बरार को, बट वो रूल्स के बाद क्लियर ज्यादा होगा. बट सैम करन तो मेरी रिटेंशन लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है पंजाब किंग्स में. बट साहिल, अगर यहाँ पर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम पंजाब किंग्स की रही है वो ऊपर का लाइनअप रहा है, बिकॉज दैट हैज बीन वेरी वो एक सेटल्ड लाइनअप नहीं रहा है. जो नंबर 1, 2, 3, 4 तक प्लेयर्स हैं, 5, 6 पे आके आशुतोष और शशांक ने रन बना दिए. सैम करन 3 भी खेले, 7 भी खेले, हर्षल. उसके अलावा उसके बाद जो बॉलर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेटल्ड है. आप हरप्रीत बरार वगैरह को वापस लाना चाहोगे, दैट इज इट. तो वो जो एक साइड है वो थोड़ी सी सॉर्टेड है. लेकिन यहाँ अगर हम टॉप ऑर्डर को देखेंगे तो दे विल बी टारगेटिंग अ बिगर टॉप ऑर्डर, मतलब एक बेहतरीन टॉप ऑर्डर देना पड़ेगा स्टेबल रखने के लिए लाइनअप को. आई थिंक यस, यू आर राइट, क्योंकि जब तक शिखर का बल्ला चल रहा था तो वो एक एंड से बैटिंग करता था और टीम को होल्ड करके रखता था. बट जब लास्ट ईयर वो अनअवेलेबल रहे तो आपको प्रभ सिमरन सिंह से कुछ इंस्पायरिंग कैमियोज जरूर देखने को मिले, बट उस लेवल की कंसिस्टेंसी, डोमिनेशन, इंटिमिडेशन नहीं आपको देखने को मिली विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आईपीएल साइड. एंड यू सॉ द चॉप एंड चेंज इन द बैटिंग पोजीशंस. जॉनी बेयरस्टो ऊपर नीचे आपको देखने को मिले. फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको कई खिलाड़ी ट्राई होते हुए दिखे. लियम लिविंगस्टन का
hot and cold, run with the bat, continued. So all those things I think put together didn't quite work in Punjab Kings' favor, and that probably led to the downfall last season. But I think they lost the plot at the auction table यार, मतलब auction में उनके पास opportunity थी course correct करने की. शिवम सिंह एक बहुत exciting talent है, TNPL में consistent run कर रहे हैं. He was warming the bench for close to 2 seasons if I'm not wrong, and last season उनको एक मैच मिला, but वो भी lower down the order. तो उनको आप ओपन करा के ट्राई कर सकते थे. आपने ताइडे ट्राई करा, हरप्रीत ट्राई करा, आपने प्लेयर्स ट्राई करे थे, बट आई थिंक दे कुड हैव ट्राइड शिवम सिंह. यार, he has been doing well in the TNPL, in the Tamil Nadu circuit. Delhi boy, moved base to Tamil Nadu, has been playing their corporate cricket and all the TNPL league games. So I think थोड़ा डेयरिंग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको कप्तान भी चाहिए, अभी आपको हेड कोच भी सुनने में आ रही है, हेड कोच भी ढूंढ रहे हैं, तो बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं. और अभी तो सुनने में आ रहा है कि ये को ओनर भी ढूंढ रहे हैं, स्टेक्स भी डाइल्यूट हो रहे हैं. तो मतलब अभी कुछ भी हो सकता है यार इस टीम का. और ये मैं तो कहूंगा इनको बोलो इस बार जर्सी भी चेंज कर दो, जर्सी भी चेंज कर लो, नाम भी बदल दे, नाम के अंदर भी एक एस बढ़ा दो या एक पी बढ़ा दो या एक बी बढ़ा दो, कुछ डिफरेंट करो. और मतलब खेलो तो फिर पूरा खेलो ना. ट्रू. बट यू नो, थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करता हूँ. मेरे ख्याल से यहाँ सैम करन को अगर इस 5 की लिस्ट में रखा है तो शायद ही विल बी द वन विल बी लीडिंग अ साइड 3-dimensional प्लेयर. एंड आई पर्सनली फील ही इज वेरी टैलेंटेड. इट इज जस्ट दैट वो शायद ओवरबर्डन हो गए थे यहाँ पे आके, या ओवरकुक्ड हो गए थे प्रॉब्ली, इसलिए उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया. बट या difference of thoughts, but again, as you have been saying, it's going to be very interesting 6 months from now on. जैसे ही वो retention के rules आते हैं, बहुत interesting हो जाएगा, बहुत permutation combinations बदलेंगे. So well, thank you so much, Sahil, for your insightful information. We'll connect again and talk about cricket at length. Thank you so much.